پر یہ کام کیا اور اپنا مخالہ داخل کیا. پھر بعد میں اس مخالے کا ایک چھوٹا سا حصہ انہوں نے گولکنڈہ ریلیشنز ود ایران ڈیورنگ 1580 to 1687 یہ کتابی شکل میں شائع کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی نوعیت کا واحد کام ہے جو گولکنڈے، ایران اور مغل ہندوستان تینوں سلطنتوں کے تعلقات پر وسیع اور بہت ہی انٹینسو اسٹڈی کرتا ہے، بہت گہرائی سے جو اس کا مطالعہ کرتا ہے. اس مخالے میں انہوں نے پہلے تو صفوی خاندان اور قطب شاہی خاندان کا پس منظر بیان کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایران اور گولکنڈے کی سلطنتوں کے سیاسی اور سفارتی تعلقات کو پوری وضاحت کے ساتھ تاریخی دستاویزات کی روشنی میں پیش کیا. اس کے بعد ایران اور گولکنڈے کے درمیان میں جو مذہبی ایک طرح سے اتحاد تھا، اکانت تھی، مذہبی بندھن تھا، وہاں بھی اثنائے عشری صفوی خاندان حکمران تھا اور گولکنڈے کے قطب شاہی سلاطین بھی اثنائے عشری عقیدے کے پابند تھے. اس حوالے سے جو تعلقات تھے ان کی پوری وضاحت کی انہوں نے اس مخالے کے دوسرے باب میں. پھر اس کتاب کے تیسرے باب میں انہوں نے دکن ایران ٹریڈز پر کام کیا ہے. دکن اور ایران کے اندر جو تجارتی تعلقات تھی ان کی پوری انہوں نے جائزہ کیا ہے. تو یہ ایسا کام ہے کہ اس زاویے سے ابھی تک کام ہوا ہی نہیں تھا گولکنڈے یا دکن اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے. یہ کام ماسٹر پیس کہا جا سکتا ہے، شاہکار کارنامہ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ڈاکٹر حسن الدین احمد صاحب کے اشتراک میں ایک کتاب شائع کی جامع الادیات کے نام سے. ڈاکٹر حسن الدین احمد کے دادا عزیز جنگ نے نظام کے مختلف قوانین پر کتابچے لکھے تھے چھوٹے چھوٹے. ان دونوں حضرات نے مل کر، جس میں ڈاکٹر حسن الدین احمد کا بڑا دخل ہے اس لیے کہ وہ وقت کے اسپیشل کلیکٹر تھے، تو اوقات کی دستاویزات سے ان کا گہرا تعلق تھا، وہ ان دستاویزات کے ماہر تھے. اور ضیاءالدین شکیب صاحب تو ماہر تھے ہی دستاویزات پڑھنے کے. ان دونوں نے مل کر وہ جامع الادیات میں آصفیہ حکمرانوں کے زمانے میں کسی کو کوئی زمین، کوئی معاش، کوئی امداد جاری کی جاتی تھی تو اس کا کیا سیاق ہوتا تھا، کیا شرائط ہوتے تھے اور کن شرائط کے تحت وہ اختیار جاری کیے جاتے تھے، وہ سب کی تفصیل انہوں نے لکھی ہے. ہر اس کو مختلف زمروں میں تقسیم کیا ہے، اتنے اقسام کے اختیار ہوا کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ اس زمانے میں جو اوزان تھے، جو پیمائشات تھی، جو سکے تھے، جو تقویم کیلنڈر تھا، ان تمام چیزوں کی تفصیلات انہوں نے اس کتاب میں بیان کی. یہ بھی بہت اہم کارنامہ ہے ضیاءالدین شکیب صاحب کا. اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کا ذکر آیا، غالب اور حیدرآباد، غالب اور فقہ وغیرہ. لیکن ان کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ جن کا ذکر ہمارے مختلف موقعین نے کیا ہے کہ شکیب صاحب حیدرآباد کے مصنفوں کی کتابوں کی اشاعت کو بڑی دلچسپی دیا کرتے ہیں. چنانچہ مہاراجا کشن پرساد کا ذکر آیا، ڈاکٹر زور کی کتابوں کا ذکر آیا. ایک کتاب کا ذکر کیا گیا محمد علی اصغر صاحب. اصل میں وہ محمد علی اصغر صاحب کی کتاب نہیں ہے، وہ کتاب ہے ڈاکٹر جمال شریف. جمال شریف کا پی ایچ ڈی کا مطالعہ ہے اردو شاعری پڑھنے سے پہلے، اور یہ کام انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر نذیر احمد کی نگرانی میں مکمل کیا تھا. وہ ویسے ہی بڑا سڑ رہا تھا، لیکن ضیاءالدین شکیب صاحب کی دلچسپی کی وجہ سے پروفیسر محمد علی اصغر صاحب نے اس پر نظر ثانی کی اور وہ مطالعہ شائع ہوا. اسی طرح حیدرآباد کے حیدر آصفیہ کے بہت بڑے حکیم اور ماہر علم نجوم، علم رمل، علم تفسیر، علم فلسفہ، علم کلام، علم تفسیر، ایک بہت بڑے ماہر تھے مرزا قاسم علی بیگ اصغر حیدرآباد. ان کی 24-25 تصانیف ہیں جو غیر مطبوع ہیں. تو شکیب صاحب نے ان کے پڑپوتے کی ایما پر یہ پروجیکٹ اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کی 3 کتابیں شائع کروائیں اصغر صاحب کی. ایک کتاب کا موضوع ہے توحید پر ایک کتاب ہے، دوسری کتاب ہے اسماء الحسنی پر، اور تیسری کتاب کا عنوان ہے توسیع الخیال فی الامثال مثال. وہ کتاب خاصہ اپنے مرتب کی ہے. شکیب صاحب نے مجھے طلب کیا اور کہا کہ یہ کتاب آپ کو مرتب کرنی ہے. میں نے مرتب کیا، اس سلسلے میں تھوڑا سا ان سے اختلاف بھی ہوا. ان کا غصہ مشہور ہے لیکن مجھے کبھی ان کا غصہ جھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا.
میرا یہ تھا کہ اگر مخطوطے میں کہیں کوئی غلطی بھی ہے، غلطی کاتب سے بھی ہو سکتی ہے، نقل نویس سے بھی ہو سکتی ہے، تو ہم اصل مصنف کی بات پڑھنا چاہتے ہیں تو تدوین کار کو، ایڈیٹر کو حق حاصل ہے کہ اس میں اصلاح کرے 86 بریکٹ میں. لیکن شکیب صاحب چاہتے تھے کہ مسودہ جوں کا کچھ شائع ہو جائے. پھر دوسرا اختلاف یہ ہوا کہ میں نے بڑی محنت سے بڑا طویل مقدمہ لکھا تھا اس کتاب کا، جس میں خالص کے آبگر کے حالات اور ان کے کارنامے سب جمع کیے تھے. لیکن انہوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو کٹ شاٹ کر کے بغیر مقدمہ نگار کے نام کی اس کو اس کتاب کے اندر شامل کر دیا. یہ تو اختلافات تھے، لیکن بہرحال میں نے بھی جو ہے اس کو چھوڑ دیا اور انہوں نے اس کو دے دیا. لیکن ان کی محبت تھی، جیسا کہ شجاعت نے کہا کہ 2 مرتبہ انہوں نے مجھے لندن طلب کیا، 2 مرتبہ لندن آنے کی دعوت دی سیمینار میں. ان کے دعوت نامے میرے پاس ریکارڈ ہے، جانکاری کے طور پر محفوظ ہے، لیکن میری بے توفیقی تھی کہ میں جا نہیں سکا. تو غرض یہ کہ شکیب صاحب خاموشی شخصیت، جس کو کہتے ہیں نا انسائکلوپیڈیا، خاموشی شخصیت کے مالک تھے. بیک وقت کئی علوم پر انہیں قبول حاصل تھا. اور جہاں تک حیدرآباد ہے، حیدرآباد کی گلی گلی چپے چپے کی تاریخ سے وہ واقف تھے. ایک مطلب یوں کہا کہ بھائی وہ اسرا دواخانے کے بعد جو 2 گنبد ہیں وہ جانتے ہیں کس کے ہیں، بڑے تکنیک کے تکنیک کے ماہر بنتے ہیں، اور بہت سے کس کے ہیں. اب حیران کے 20 سال سے وہ گنبدوں کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا. انہوں نے بتایا کہ وہ جو 2 گنبد ہیں دشتگی برادران کے ہیں، عبداللہ قطب شاہ کے اساتذہ تھے، سلطان عبداللہ قطب شاہ کے استاد تھے، ان کے جو ہے وہاں پر گنبد ہیں. اسی طرح ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے جن سے اب کم لوگ واقف ہیں کہ انہوں نے مارکس کے آگے قدیم زمانے کا باخبر تاریخ آرمینیائی قبرستان دریافت کیا، اور غالباً اس پر انہوں نے جو آرٹیکل لکھا اسی کی بنیاد پر اورینٹل اسٹڈیز آف لندن میں ان کو جو ہے آنے کی دعوت دی گئی، اور 1980 میں وہ وہاں چلے گئے. اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے اپنے تحقیق کو جاری رکھا. برٹش میوزیم لائبریری کے کئی کیٹلاگز انہوں نے مرتب کیے، مخطوطات کے ڈاکیومنٹس کے، اور وہاں کے طلباء کے لیے، وہاں کے اساتذہ کے لیے اردو کے کئی کا مواد انہوں نے تیار کیا. بہرحال ان کی خدمات تو بہت وسیع ہیں، سفینہ چاہیے اس بحر بیگانہ کے لیے. میں اس موقع پر اس سے زیادہ کچھ عرض نہیں کر سکتا، لیکن جو منتظمین ہیں اس اجلاس کے، ان سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ ایک یادگاری مجلہ ضیاء الدین شکیب صاحب کا شائع کیا جائے، جس میں جتنے تاثرات، جتنے تقاریر ہوئی ہیں ان کو جو ہے اس کے اندر شامل کیا جائے. تو ایک یادگار ٹائپ رہے گی ضیاء الدین شکیب صاحب کی، ورنہ الفاظ تو ہوا میں تحریر ہو جائیں گے، کل انہیں کوئی یاد نہیں رکھا ہے. موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ماننے کی. یہ تھے پروفیسر محمد نصیر الدین فرید جو ڈاکٹر محمد ضیاء الدین شکیب کے متعلق اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے. اب فہرست پہ نام ہے ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز. مجھے گواہ ہوں میں سے سمجھ ہوں کہ اپنے تاثرات پیش کریں. جناب ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگ اچھے ہیں، بہت دل میں اتر جاتے ہیں. ایک برائی ہے بس یہی کہ وجہ ابھی 28 گھنٹے پہلے میرے بہن کا انتقال ہوا. میرے کوئی فیملی کسی خاندان کے فرد کی جب موت ہوتی ہے تو شخصی طور پر کیا اندازہ ہوتا ہے. وہ طرف سے میں گزرا ہوں جیسے میرے بھائی کا جیسا طلب نہیں. اچانک میرے تصور میں 1908 کی جولائی میں کئی لوگ جان بچانے والے درخت کا تصور ہے. درخت کے ایک فرد ختم ہوتا ہے تو ایک خاندان گزرتا ہے. ضیاء الدین شکیب صاحب یا شمس حسین صاحب جیسے شخصیات گزرتی ہیں تو
तब इसका गुजर जाते हैं कि रमजान उससे मैं तो यहाँ की ज़ियारत से सीधा यहीं पर आया। मैं कुछ हम अपने बहन भाइयों से शेयर करना चाहता था, मगर मैं यहाँ पर इसलिए आ गया कि यहाँ पर इज्तिमाई हम पैसा हो रहा है। शायद मेरा हम क्या है कुछ ऐसा होता और मेरा जहाँ तक ज़ियाउद्दीन शकील साहब का ताल्लुक है, पुराना ही हमारे पंडित रसूल रहमान साहब से पहली मरतबा उनका जिक्र हो रहा था और पहली मरतबा तकरीर कराने के लिए अली खान साहब जो तकरीबन हफ्ते स्टार्ट कर गया था, तो उनके बारे में पढ़ा था। तो मैं एक साथ फोन पे भी पूछा अली भाई करानी का जैसे अखबार में इतना बड़ा आर्टिकल है, तो मैंने कि मियाँ फाजिल वो शख्सियत इतनी बड़ी है कि मैं अशर शरीफ के बारे में देख सकता हूँ। उसके बाद मुलाकात ले गई मैडम के जरिए, डॉक्टर मैडम के जरिए शेवर के सिलसिले में और उनके कारनामों से खिदमत से हम वाकिफ होते रहे। जहाँ तक शमशाद साहब का ताल्लुक है, उनका जो कारनामा मुझे या फलाही काम था दो तीन चार साल पहले उन्होंने किसको भी दी हैदराबाद में तकरीबन कई करोड़ की जमीन दी या डोनेट की उन्होंने जो है, और ये भी उनका मुशाकिरत है और जाने और कितने उन्होंने पढ़ाई काम की है। एक ऐसी शख्सियत जो बनने के बाद भी वो याद रखी जाती है। यकीनन यहाँ और वहाँ पूरी जगह उनका आलाम काम है, इस बात का भी यकीन है। मैं ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ। मैडम ने मोहब्बत मेरा नाम खरीद में शामिल कर दिया है। दोनों परवीन के अरकान खानदान के काम में शामिल है और बहुत अच्छे मालूमाती तकारीर सुनने का मौका मिला और इल्म उड़ा नहीं होता। इस उम्र में भी हम कुछ यहाँ से खजाना लेके जा रहा हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब शकील साहब की एक स्टूडेंट रही हैं नवनीता बी कंसर्न, उनकी एक तहरीर डॉक्टर उमैरा सईद पेश करेंगी। मैं डॉक्टर उमैरा सईद से ख्वाहिश कर रहा हूँ कि वो नवनीता बी कंसर्न की तहरीर जो अंग्रेजी में है और Dr. Shakib's sad demise is an invincible blow to the field of Indo-Islamic studies. He was perhaps the last of the ilk of polymath scholars who could as easy quote verses from Rumi, Muhammad Khalil Shah or Marker while providing an enriching history of the Kalamkari exports to Europe. To a novice like me, he appeared as a vast fountain of knowledge. A formidable figure in his white kurta pajama, yet as I would eventually learn, a very approachable and generous teacher with a cheeky wit. He introduced me not only to important scholarly text, but to the people, culture, and the charm of Hyderabadi life. I spent many hours sitting literally at his feet, learning from him and leafing through materials in his home library. In fact, the last time I saw him was in Mehndipatnam, where he was attired in a green pajama, all set to have his breakfast. I joked that he resembled His, and now indeed he has become the guardian of all his students and the angel who lives eternally in all our memories and through our scholarship. May
May God bestow paradise on him. Thank you. नागरिकता भी कंचन की तहरीर आपने जमा की डॉक्टर बुल्ला सईद से, और मैं मुल्तमस हूँ महफिल के निगरान जनाब गुलाम जानी सीनियर एडवोकेट से वो तशरीफ लाएँ और अपने तासुरात पेश करें। जनाब गुलाम जानी सीनियर एडवोकेट। भाई थोड़ा साइड हो जाइए, भाई थोड़ा थोड़ा प्लीज थोड़ा साइड आ जाइए, थोड़ा साइड जी। मुझे उनसे ताल्लुक था, उससे नसीब किए कि आप सब हजार वाकिफ हैं, बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी उसकी शोहरत और उसके वजूहाती के दोनों से मेरा जो रब्त था, उससे कई ऐसे प्रोग्राम्स हुए जो बैनुल-अक़वामी अहमियत के हामिल रहे। इक़बाल शनासी और महफिल अहलिया के महफिल से जो आप वाकिफ़ हैं, खुसूसन इक़बाल शनासी के महफिल में ये बहुत ही दिलचस्पी लिया करते थे। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन शिखर एक ऐसा नाम है जो बैनुल-अक़वामी तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। मैं यहाँ पर जितनी तकारीर हुए उसमें कुछ इतनी बातें कही गई कि मेरे लिए कुछ वाक़ई नहीं रहा, सिवाय इसके कि मैं अपने ज़ाती उनसे जो ताल्लुक़ात थे उसके बारे में कुछ बयान करूँ, क्योंकि वक्त भी हो चुका है, ज़्यादा तफसील से कहना मुमकिन नहीं है। ज़ियाउद्दीन शिखर साहब से मेरी पहली मुलाकात हो गई 1975 में मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस हुई, जिस वक्त फखरुद्दीन अली अहमद साहब प्रेसिडेंट थे और वो हुई थी कोटी में थे। आसिफ पाशा मिनिस्टर थे और नारायण राव साहब आर्काइव्स के चीफ थे। सवाल ये था कि आर्काइव्स से कुछ रिकॉर्ड मंगवाया जाए और वहाँ पर ज़ियाउद्दीन शिखर साहब उसके इंचार्ज थे। वहाँ से कह दिया गया कि रिकॉर्ड किसी जगह मुंतकिल नहीं होता और आप कोशिश मत कीजिए कि उनकी कोठी ले जाएं ताकि से। हुआ है कि आसिफ पाशा ने वो मिनिस्टर साहब से इजाज़त चाही तो उन्होंने भी पूछा किया, फिर बात कही बेगरवा साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इजाज़त दी और इस शर्त पर इजाज़त दी कि दो ज़बरदस्त पुलिस बैंड वहाँ ले जाए जाए और उनकी नुमाइयत में उनकी निगरानी में वहाँ पर की कोठी में खास जगह पर महफूज किया जाए, उनकी नुमाइश करें और उसके लिए ज़ियाउद्दीन शिखर साहब का इंतखाब हो गया। और वहाँ से वो लेकर आए तो रात को मैं समझता हूँ 24 जवानों का स्क्वाड उसकी हिफाजत किया और ज़ियाउद्दीन शिखर साहब ने वो तमाम नक्शे और वो रिकॉर्ड जो वो ज़माने के थे, एक तो एक दरिया है या कोई और दरिया से क्रॉस करके जो मुगलों का नक्शा था, वो नक्शा लेकर आके एक बड़े टेबल के ऊपर लगा दिए थे और कई ऐसी बातें की। ज़ियाउद्दीन शिखर साहब की खूबियाँ बयान करना मुमकिन नहीं है, इसलिए कि वो एक वर्सेटाइल जीनियस, अंग्रेजी में वर्सेटाइल जीनियस कहा जाता है, क्योंकि उनके आपने अपनी जो बातें सुनी वो तो जाहिर है कि
एक तो ये कि मोहतरमा जियाउद्दीन शिकैर लंदन से मुझे हर 2-3 दिन में दफा बात होती है उससे, उन्होंने मुझे एक पर्चा दिया, हवाला दिया, तो मैंने उसको निकाल के कॉपी करवाई। तभी आप सबके हाथ में आपको मिल चुका होगा, तो देखने से ताल्लुक रखता है। और उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें जो कुछ लिखा गया है वो खुद बताता है कि जियाउद्दीन शिकैर साहब की शख्सियत क्या थी। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूँगा कि मैं जनरल बातें इस वजह से कह रहा हूँ कि यहाँ से जनरल बातें जो कुछ कहा हूँ वो महदूद है। उनके रहने के बाद के जुमा में हमने खत्म प्रमाण करवाया मस्जिद आलिया, जिसको काफ़ी लोगों ने जिसमें शिरकत की। और उसके बाद हमारी जो महफिल होती है उसमें वालशिनासी की महफिल में भी उनकी ताज़ियत हो चुकी है। तो ये जलसे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ इस वजह से भी नहीं कहूँगा कि मैंने पहले ही से और मैंने ईरान का की हैसियत से जो आपके सामने मौजूद उसकी बताई गई है, इससे पहले नहीं मानना चाहिए। और दूसरी और कोई बातें एक लद्दाख फाउंडेशन नाम से उन्होंने एक तंजीम बनाई थी जो रजिस्टर भी की गई थी। बदकिस्मती से वो उसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ। उसमें के पास ट्रस्टीज यहाँ पर मौजूद हैं और अल्लाह चाहे तो वो उनके काम को हम आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करेंगे। मुझे और भी ये से करना है कि ये हमारे बैनुल-अक़वामी तहज़ीबी सफ़ीर थे और आप जो है इस बात की कोशिश करें कि उनके यादगार के लिए कोई ना कोई, तो जैसे ये तो आमतौर पर कहा जाता है कि कोई रोड का नाम रख दिया जाए या कोई और तरीके से, लेकिन किसी न किसी तरीके से हमारी तंजीमों को ये चाहिए मुतहदा तौर पर ये कोशिश करें कि उनकी यादगार को दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। शमशाद हुसैन के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, हैदराबाद में शायद ही कोई ऐसा आशिक़ रवान हो जो इतने फासले से आया है। आपको मालूम है मरीन होने के बाद उनका एक फार्म था। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो एक मशहूर शहर हॉस्पिटल के इंचार्ज का सुप्रिटेंडेंट थे, लेकिन अगर हैदराबाद में होते तो वो कभी भी मिस नहीं करते। इतने फासले से 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर से आए, लेकिन अगर वो ना आते तो हम ये समझते थे कि वो हैदराबाद में नहीं। और इस कदर वो था उनको कलाम इकबाल के कि अगर कोई मुसन्निफ नामद मुसन्निफ भी अगर इकबाल के कलाम में कोई गलती करता या कोई मिसरा भूल जाता तो वो फौरन कर देते और बोलते कि भूल है। और आपको पता है कि उनके एक बहुत बड़ा कानून ये है कि इनामुल साहब चीफ इंजीनियर भी जिक्र आया। चीफ इंजीनियर जो है उन्होंने इख्तिसार के साथ पुरानी हिदायत के बारे में अपने तस्दीक छोड़ी, तो उसका इंग्लिश तर्जुमा उन्होंने किया। तो ये बहुत बड़ा काम था। एक मसरूफ डॉक्टर होते हुए ऐसी खिदमत अंजाम देना, ये जो है हमारे लिए बहुत बायस फख्र है। और उनकी भी मेहनत जो है हमारे लिए बड़ी तकलीफ का बायस रही, क्योंकि हमारे वालशिनासी के महफिल में बड़ी ही पाबंदी से आ रहे और उनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा थी कि अगर कोई तकलीफ में कोई किसी बारे में भी हो, इकबाल के अशार को पूछे, जैसे पी गया इकबाल के अशार के बारे में किसी ने अगर कोई भूल जाता, कोई अटक जाता तो फौरन वो उसको भर्ती कर लेते, याद नहीं कर लेते। मगर उनके लिए भी हमें चाहिए कि दुआ मुकर करें और उनके लिए भी कोई नाम उनके खास तौर पर मैं उनके उत्साह से गुजारिश करूँगा वो आगे आए और उनके नाम पर हैदराबाद में कोई बड़ी निशानी के तौर पर कोई ऐसा काम करें।
जो हमेशा हमेशा आने वाली नस्लों के लिए रहनुमाई का वास्ता शुक्रिया। अपने तासुरात पैदा कर रहे थे, जो डॉक्टर मज़ीद के डॉक्टर शमशाद हुसैन के ज़माने में। मैं अब आखिरी सदर इजलास और जो इस महफिल की रूह प्रोफेसर फातिमा मुस्तफ़ी से गुजारिश करता हूँ कि अपने तासुरात पेश करें। प्रोफेसर फातिमा मुस्तफ़ी। हाज़िरीन महफिल, ये महफिल ताज़ियत के लिए आई है, तो इसलिए मैं यहाँ आप सबके या किसी और के नाम लेने के बजाय आप सबसे गुजारिश करूँगी कि सूरह फातिहा और सूरह इखलास के साथ इन दो मरहूमीन के लिए इसाले सवाब का पहले एहतमाम करें। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। हाज़िरीन, आमतौर पर महफिल में खुतबे सदारत के लिए सबका नाम लिया जाता है और उन्होंने क्या कहा है उस बारे में इज़हार ख्याल किया जाता है, लेकिन ताज़ियत की महफिल एक ऐसी महफिल होती है जिसमें गुजरने वाले से ताल्लुक़ रखने वाला हर फर्द अपने अपने एतबार से उसे खराज अक़ीदत पेश करता है। मैं समझती हूँ कि यहाँ फिर उसका इआदा करना मुनासिब नहीं रहेगा। हम सब उर्दू ज़बान और अदब के परस्तार हैं, उर्दू ज़बान जानते हैं, हमने 2 घंटे से उन अशख़ास के बारे में सुना है, तो अब ये सिर्फ बैठना तो क्या एक पहल थी किसी को याद करने की, एक बहाना था उन शख्सियात के तय खराज अक़ीदत पेश करने का। मैं आप सबके साथ इसमें शरीक हूँ और इसी में मैं ये कहती हूँ कि डॉक्टर शमशाद हुसैन एक ऐसा नाम जिसने मेडिकल साइंस में डबल एफआरसीएस किया, बेहतरीन सर्जन थे, मुख्तलिफ ममालिक में खिदमत अंजाम दी और जब अपने शहर लौटे तो अपने आप को, अपने वसाइल को, अपनी सलाहियतों को, अपने किरदार को, अपनी शख्सियत को, अपनी रफ्तार को, अपनी गुफ्तार को अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, अपनी कौम के नौनिहालों के लिए वक्फ कर दिया। मेस्को आप जानते हैं कि मुसलमानों की तालीमी हालत को बेहतर बनाने के लिए ये इदारा बना है। वो उसके सदर थे और उन्होंने आखिर वक्त तक मेस्को को आगे बढ़ाने का काम किया। अपनी अहलिया की वफात पर मेस्को को एक इमारत बनाकर अपनी अहलिया के नाम से उसको मौसूल किया। गरीब बच्चों
शमशाद भाई का जाना तो सभी को है, गए हैं, लेकिन अभी किसी ने कहा, हाँ फाजिल ने कहा कि एक शख्स अगर जाता है तो एक घर उजड़ता है, लेकिन अगर ऐसे अशखास जाते हैं तो घरों के घर उजड़ जाते हैं और ताज़गी के और आगे बढ़ने के, तरक्की करने के रास्ते खत्म हो जाते हैं। ऐसा शख्स बहुत कम मिलता है और इसकी हमको अफसोस होता है कि अल्लाह ताला ने इनको और ज़्यादा उम्र क्यों नहीं अता फरमाई। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद शकील वालिदैन ने पता नहीं क्या सोचकर नाम रखा था, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िया को सिर्फ हैदराबाद तक महदूद नहीं किया, बल्कि 4 दांगे आलम में उसकी रोशनी कुछ इस तौर पर फैलाई कि आज हम अलका बागरी को हम गुसार देख रहे हैं और सुबह दयाल के मजमून से इस्तेफादा कर रहे हैं। कंचन नम्रता उनके लिए सोगवार है, संजीव लांबा उनके लिए रो रहे हैं, करुणा लांबा उन्हें याद कर रही हैं। हम तो इसलिए याद करेंगे ही कि वो हमारी जमीन की, हमारे मुल्क की, हमारी मिल्लत की नुमाइंदगी कर रहे थे। आजकल हम ये देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन का जमाना है और अगर कोई एक चीज आ जाती है तो दूसरे से बेनियाज हो जाते हैं और हर मैदान में हम यही देख रहे हैं कि किसी मखसूस चीज को लिए लोग अपनी सलाहियत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी शख्सियत सामने आ जाती हैं जो मल्टी डायमेंशनल होती हैं और अपनी शख्सियत के इतने जौहर दिखाती हैं कि हमें सोचना पड़ता है कि इनका कौन सा जौहर ज्यादा रोशन है और किस मैदान में वो आगे हैं। संजीव लांबा कहते हैं, नाम ही से आप देख लीजिए कि वो एक गाने या मुसीकार हैं और गजल खां हैं और उनको घंटों बिठाकर शकील साहब ने एक शेर की गहराई से वाकिफ करवाया ताकि उनकी आवाज जब निकले तो दिल से निकले और उसमें वो चीज शामिल हो जाए जो शायद कहना चाहता था। इत्तेफाक की बात यह है कि अभी चमरी साहब ने बताया कि 2 मौकों पर, ये तो दगनी सेमिनार के मौके पर और दूसरे सूफी सेमिनार के मौके पर संजीव लांबा और करुणा लांबा को सुनने का मौका मिला और फिर जब यूट्यूब पर उन्होंने अपना खराज हकीकत पेश किया है तो उसे पढ़कर हमें महसूस होता है कि ये मुसीहार उससे पहले ये नहीं जानते थे कि शेर में क्या होता है, शायर क्या कहना चाहता है और उस जज्बे को कैसे पेश करना चाहिए। शकील साहब ने इन लोगों से 1997 में राब्ता किया और पहली बार अकबर हैदराबादी के मजमूए कलाम जर्रों से सितारों तक की कुछ गजलें खुद मुंतखब की और उनको उनके मतालिब समझाए और उनसे पेशकश करवाई। फिर उसके बाद ये सिलसिला उनकी मौत तक चलता रहा और हर सेमिनार में ये लोग अपना कमाल दिखाते रहे। वो कहते हैं कि धनक नाम से एक पेश किया गया था प्रोग्राम, उसमें शकील साहब ने पंजाबी, सिंधी, गुजराती सबके जो मुंतखब नुमाइंदा लिखने वाले हैं उनकी गजलों को पेश करने का इनको सलीका अता किया और घंटों इनके साथ गुजारे। अपनी तरक्की के लिए, अपनी तशहीर के लिए तो इंसान बहुत कुछ करता है, लेकिन पछ पर्दा रहते हुए ऐसे काम अंजाम देना हर एक से मुमकिन नहीं है। उसी तरीके से उन्होंने नैरंगे इश्क नाम से एक प्रोग्राम पेश किया जिसमें बताया कि मोहब्बत के कितने रंग होते हैं। 7 शोरा का इंतखाब किया और उनकी रूह को उसके जरिए से पेश किया। संजीव लांबा कहते हैं कि ऐसा गुरु हमें मिला नहीं और ऐसे गुरु के जाने का हमारे दिल में एक ऐसा दर्द है कि जिसका इजहार मुमकिन नहीं है। हैदराबाद में हमने अभी आप सब सुन चुके हैं कि बारामती बारादरी में जब हुआ था प्रोग्राम तो 5 बजे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। उन्हीं की पैरवी में हमने कोशिश की कि 7 बजे का वक्त दिया गया है तो 7 बजे शुरुआत कर दी जाए और 5 से 10 मिनट के अंदर हर एक अपनी बात कह दे। मेरे 10 मिनट अभी नहीं हुए हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रही हूँ और आप लोगों की इजाजत से, वरना ये हकीकत है कि उनके सामने हमारी आवाजें जा रही होंगी, वो देख रहे होंगे और अगर हम बेअदबी करेंगे तो उनको तकलीफ पहुंचेगी। तो जो प्रोग्राम उनकी
लिए। दूसरी बात, आपने कहा कि कोई एक यादगार कायम होनी चाहिए। शकील साहब ने जोर फाउंडेशन के जरिए, इकबाल फाउंडेशन के जरिए चाहा था कि उनके काम एक अमली शक्ल के सामने आ जाएं। हमने बड़ी मेहनत भी की, कोशिश भी की, लेकिन कुछ बातें ऐसी रही जिनकी वजह से ये उतने फ़आल नहीं हो सके। हमारी आगे भी अल्लाह ताला से ये गुजारिश है कि उनके जो मंसूबे थे, उन मंसूबों पर आगे बढ़ने का हौसला, सलाहियत, वसाइल हमें मिल सके और हम उस काम को आगे बढ़ा सके। एक बात, यहाँ प्रोफेसर मजीद बेदार साहब आने वाले थे, किसी वजह से नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने एक बात पेश की है कि गालिब और हैदराबाद, अगर कोई इस किताब को अंग्रेजी या तेलुगु में तर्जुमा करता है तो मजीद साहब उसे शाया करवाने के लिए तैयार हैं। ये खुला पैगाम है आप सब के लिए कि गालिब और हैदराबाद को या तो अंग्रेजी में मुंतकिल कीजिए या फिर तेलुगु का जामा पहनाइए। शकील साहब, मैंने उनसे क्या हासिल किया वो तो बहुत तवील दास्तां है और उस पर यहाँ रोशनी डालने से कोई फायदा भी होने वाला नहीं है। दिल की गहराइयों में वो छुपे हैं, उनकी आवाज़ छुपी है। संजीव लांबा ने जब कहा कि उनका मखसूस तकिए कलाम था, है ना साहब, तो जब समझा देते तो कहते थे कि हाँ अब आप मुत्तफिक हुए ना। और किसी ने कहा लंदन में कि भाई क्या आप लोगों की आवाज़ इतनी अच्छी है तो आप कुछ फिल्मी गीत गाइए। वहीं शकील साहब मौजूद थे। शकील साहब ने कहा फिल्मी तो सुनते ही रहते हैं, कुछ इल्मी भी सुन लीजिए। इस एक जुमले में माने की कितनी दुनिया आबाद है। अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, इन तमाम जबानों पर पूरा उबुल रखने वाला, दस्तरस रखने वाला और उनके तवस्सुस से इल्म और अदब की खिदमत में बिला नामनमूद की ख्वाहिश के कि किस किताब को उन्होंने खुद देखा है, प्रूफ रीडिंग की है। सोचिए आप कि राशिद आजुर का 1300 सफ़हात पर मुश्तमिल कुलियात की प्रूफ रीडिंग होता है और दूसरी तरफ मुस्तर मजाज के तवील तर्जुमात को किताबी शक्ल में पेश करना, उसकी प्रूफ रीडिंग करना, उसे छपवाने का इंतजाम करना, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए हैदराबाद की मुख्तलिफ शख्सियात को गालिब अवार्ड के लिए प्रपोज करना, वहाँ पर अपने वसाइल का इख्तियार सबके लिए किया लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं किया। मैं हमेशा उनसे कहती रही कि सर आपके मज़ामीन दीजिए, हम उसे चाहेंगे। वो हंसकर मुस्कुराकर टाल जाते थे। आज के दौर में कौन ऐसा मिलता है जो अपने ज़ात पे तवज्जो न दे, अपने अवार्ड पे तवज्जो न दे और सिर्फ खिदमत में मशगूल रहे। सलाम है उस शख्सियत पर और सलाम है उस माँ पर। 2014 में उनकी वालदा का इंतकाल हुआ और देखिए कि सिर्फ 6 साल के ऐसे में वो भी चले गए। वालदा से उनकी मोहब्बत का बयान तो आपने सुना, हमने आंखों से देखा है, उन आंखों को पढ़ा है, उस शख्सियत को देखा है, उसकी मोहब्बत को देखा है जिसके बच्चे सिर्फ उसके अपने बच्चे नहीं थे बल्कि जो भी उसके पास पहुंच जाता वो उसका बच्चा बन जाता। ऐसी सलाहियत नायाब है, कामयाब है और ढूंढने से मिलने वाली नहीं है। मैं बारगाह रब्बुल इज्जत में उनके बुलंद दर्जात के लिए दिल की गहराइयों से आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इल्तिजा पेश करते हुए इजाजत चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको उनका करीबी, जैसा हम समझ कह रहे हैं कि वो हमको ज्यादा चाहते थे या किसी को, तो हमें उनकी तालीमात पर अमल करने वाला बना दे, हमें उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाला बना दे। इन चंद कलमात के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने इस महफिल को रौनक बख्शी और एक ऐसी शख्सियत को खिरात तहसीन पेश किया जिसकी शख्सियत के सामने हर चीज बेकार है। वो हैदराबादी तहजीब के ऐसे नुमाइंदे थे जिन्होंने समाजी, तमद्दुनी, अखलाकी, तालीमी, तरबियती हर एतबार से अपने आप को मनवाया, अपनी सलाहियतों को मनवाया।
आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हम खामोशी भी करें तो ऐसे दिनों के बाद अब खामोशी भी करें कुछ दिनों के बाद जेल में स्वतंत्र आजाद थे जाने का मैं आप तमाम सुझावों का जिन लोगों ने इस प्रोग्राम के इन्हें में ताउन किया और आप तमाम हाजिर का और जो वेबसाइट पर इस प्रोग्राम को देखते हैं सभी का साथ शुक्रिया।